Good morning, class 5. Welcome back to your math classroom once again. Hope all of you done well in the last exam. So after exam, this is the first class and I'm going to start chapter 11, volume. So look at my copy. At first, what is volume? Volume means a space which actually occupied by a particular object, that is volume. So in case of cuboid, the volume is length into breadth into height, whereas the volume of cube, that is side into side into side. For what? Because in case of volume of cuboid, the shape is rectangular. That's why length, breadth, height alag hota hai. But in case of cuboid, each side is a particular स्क्वायर. तो स्क्वायर के लिए हर साइड इक्वल है, इसीलिए द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज साइड इंटू साइड इंटू साइड, आई मीन साइड क्यूब. और इन केस ऑफ वॉल्यूम द यूनिट विल बी cubic, like semi cube, meter cube, millimeter cube, etc. So look at the problem. Here as complete the table given below. फर्स्ट लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया गया है, वॉल्यूम निकालना है. सो व्हाट इज द प्रोसेस? सिंपल प्रोसेस, जस्ट मल्टीप्लाई बिटवीन द नंबर्स. 7 6 2, 7 6 are 42, 42s are 84 semi cube. These are volume. Same way you will fill up at home. I will discuss from number 3. So what is volume? Just mind it. In case of cubic structure, look at this question, cubical box. Cubical box matlab the box is cube in shape. Cube means each side is equal and each side is another square, whereas the cuboid box means normally look like bricks, each side another rectangular in shape. So इसीलिए वॉल्यूम अलग होगा. इन केस ऑफ क्यूब, that is side into side into side, whereas in case of cuboid, length into breadth into height. So first question is here, a cubical box is 22 semi long. What is the volume of this box? So cubical box बोला है, मतलब हर फेस इक्वल है, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही इक्वल होगा. इसीलिए क्या करेंगे, according to question, volume of this box is side into side into side and unit cube. So 22 semi, 22 semi, 22 semi, मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों इक्वल है, इसीलिए 22 semi multiplied by 22 semi multiplied by 22 semi, and the value will be 10,648 semi cube. For what? Because semi multiplied by semi multiplied by semi, semi cube. Whereas in case of area, it will semi square. Same way, in case of volume, it will be semi cube. Next, number 4. Find the volume of a cube, one face of which has an area of 144 square meter. So already बोला गया है, find the volume of a cube, one face of which has an area of 44 square meter. क्यूब का वॉल्यूम निकालना है और उसका ऑलरेडी हम लोगों को एरिया मिल गया. एरिया मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, बट इन केस ऑफ क्यूब हर साइड इज इक्वल, सो साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, that is 144 square semi. So look at my copy. Side into side, area of square is side into side. So each side क्या होगा, root over 144 square semi, means each side is 12 semi. So according to the question, volume of the cube will be side into side into side. I mean 12 semi multiply by 12 semi multiply by 12 semi, that is semi cube, means
1728 सेमी क्यूब. सो प्लीज स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहले क्या करना है, बोला गया है एरिया ऑफ द स्क्वायर. एरिया मतलब इन केस ऑफ स्क्वायर दैट इज साइड इनटू साइड. सो बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द एरिया. सो इन केस ऑफ दिस क्या करेंगे, ईच साइड इक्वल टू रूट ओवर द एरिया. सो वेयर एज द एरिया बोला गया है 144 स्क्वायर सेमी. सो ईच साइड क्या होगा 144 रूट ओवर करने के बावजूद हम लोगों को क्या मिलेगा, ईच साइड इज 12 सेमी. उसके बाद उसका वॉल्यूम निकालेंगे क्योंकि ईच साइड इज इक्वल. So 12 semi multiplied by 12 semi multiplied by 12 semi, that is 1728 semi cube. Next, number 5. A box has a base of area 120 semi square. Area बोल दिया गया है. Area मतलब length into breadth. Its height is 8 semi. So from this conception, it will clear the box is क्यूबॉइड इन शेप, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट अलग है. हमको एरिया दिया गया है और हाइट दिया गया है, वहां से हम लोग इजीली वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. सो लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलता है, एरिया. इसीलिए एरिया के अंदर ही लेंथ इंटू ब्रेथ है और हाइट अलग से दिया गया है. सो वॉल्यूम क्या होगा, according to question, length into breadth मतलब area into height. Area 120 semi square multiplied by height 8 semi cube. So volume will be 960 semi cube, क्योंकि एरिया का सेमी स्क्वायर और हाइट का एक सेमी तीनों मिला के हो गया 960 सेमी क्यूब. नेक्स्ट नंबर 6. A wall 20 meter long, 4 meter high and 72 millimeter thick. Thick means उसका breadth is to be constructed using bricks of dimension 32 semi multiplied by 80 semi multiplied by 10 semi. मतलब एक वॉल का ये हो गया उसका वॉल्यूम, और ये वॉल जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है हर ईंट का जो डायमेंशन है दैट इज 32 सेमी मल्टीप्लाई बाई 18 सेमी मल्टीप्लाई बाई 10 सेमी. तो क्या पहले निकालेंगे, वॉल का जो वॉल्यूम है वो निकालेंगे और हर ईंट का, हर ब्रिक्स का जो वॉल्यूम है वो निकालेंगे. उसके बाद टोटल वॉल्यूम को अगर एक ईंट का वॉल्यूम से हम लोग डिवाइड कर देंगे, वी विल इजीली गेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्टेड द वॉल. सो लुक एट माय क्वेश्चन. Look at my copy. Volume of the wall, length into breadth into height. So यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है. Look at this. 20 meter long, 4 meter height and 72 millimeter thick. Again, the dimension of shape of the brick that is 32 semi, 18 semi and 10 semi. सो हम लोगों को क्या करना है, हर यूनिट को इक्वल करना है. हर यूनिट को अगर इक्वल करेंगे तब जाके हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं. इसीलिए मीटर को सेमी में ट्रांसफर करना है, अगेन मिलीमीटर को भी सेमी में ट्रांसफर करना है. सो 20 मीटर लॉन्ग मीन्स 2000 सेमी, हाइट 4 सेमी मतलब 4 मीटर हो गया 400 सेमी, एंड ब्रेड मतलब उसका थिकनेस हो गया 72 मिलीमीटर. 72 मिलीमीटर से अगर हम लोग सेंटीमीटर में जाएंगे डिवाइडेड बाई 10, इट मीन्स 72 सेंटीमीटर. सो आफ्टर मल्टीप्लाई दिस विल गेट दिस वन 576,000,000 सेमी क्यूब. सो ये हो गया वॉल का वॉल्यूम. देन वी विल just find out the volume of a single brick 30 semi, 18 semi and 10 semi. It means 5760 semi cube. So wall का वॉल्यूम को अगर एक ईंट का जो वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर देंगे, we'll get the number of bricks required, that is 1000 bricks. Next, number 7. A cuboidal box is 22 semi long,
20 semi wide and 18 semi high. And a cube has an edges. एज मतलब एक क्यूब का हर फेस एक स्क्वायर है और उसका साइड है 16 सेमी. सो विच हैज अ ग्रेटर वॉल्यूम. दोनों का अलग से वॉल्यूम निकालना है. सो लुक एट माई कॉपी. Volume of the cuboidal box, that is length into breadth into height, it means 7920 semi-cube. Whereas the volume of the cube, side into side into side, it means 4096 semi-cube. क्योंकि उसका हर साइड बोला गया है 16 सेमी, इसका मतलब 4096 semi-cube. So if we compare the two volume, obviously the cuboidal box is greater than cube. मतलब क्यूबॉइडल बॉक्स का जो वॉल्यूम है ये क्यूब का वॉल्यूम से ज्यादा है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यूबॉइडल बॉक्स हैज ग्रेटर देन और ग्रेटर वॉल्यूम. नेक्स्ट नंबर 8 का क्वेश्चन छोड़ दो. नेक्स्ट 9. ए कैनल हैज 200 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप. हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ वॉज रिमूव टू dig द कैनल. जस्ट फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द कैनल. तो क्या करेंगे, लुक एट माई कॉपी. वॉल्यूम ऑफ द कैनल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज 1200 मीटर क्यूब. नेक्स्ट नंबर 11. क्योंकि सेम जस्ट वॉल्यूम निकालना है, तीनों नंबर को इजिली मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द वॉल्यूम. सो आई विल डू 11. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड डायमेंशन ऑफ 800 मिलीमीटर, 90 सेमी एंड 12 सेमी. लुक एट द डिफरेंस. तीनों का यूनिट सेम नहीं है. लेंथ का हो गया 800 मिलीमीटर. मिलीमीटर को हमको सेमी में ट्रांसफर करना है. इट मीन्स मिलीमीटर का सेमी में जाएंगे डिवाइडेड बाई 10. सो इट इज 80 सेमी. देन उसका ब्रेथ हो गया 90 सेमी एंड हाइट 12 सेमी. सो लुक एट माई कॉपी. Volume of the cuboid, length into breadth into height means 80 semi multiplied by 90 semi multiplied by 12 semi. It means 86,400 semi cube. Next, directly हम 13 में जाएंगे, 12 को छोड़ के. You will do at home. A large cardboard has volume of 72 meter cube. Its height is 4 semi. So what is the floor area occupied by the cardboard? वॉल्यूम दिया गया है और वहां से उसका हाइट दिया गया है. तो इजीली वी कैन गेट द एरिया, क्योंकि टोटल वॉल्यूम मतलब एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट. सो अगर हम लोग वॉल्यूम को हाइट्स डिवाइड कर देंगे, सो वी विल गेट द एरिया. Look at my copy. Volume of the cardboard is 72 meter cube. It means लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. वॉल्यूम हो गया जिसका वैल्यू क्या है 72 मीटर क्यूब. सो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एरिया इंटू हाइट इक्वल टू 72 मीटर क्यूब. सो एरिया और हाइट क्या है 4 मीटर दिया है. सो 72 मीटर क्यूब. सो एरिया क्या होगा, अगर वॉल्यूम को हम लोग हाइट से डिवाइड कर देंगे, सो वी विल गेट द एरिया 72 मीटर क्यूब और 4 मीटर. सो मीटर और मीटर क्यूब को काट दिए, एरिया क्या निकल गया 80 मीटर स्क्वायर. क्योंकि एरिया मतलब लेंथ और ब्रेथ. सो दोनों को यूनिट अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट द मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट नंबर 15. The base of a tank is rectangular, 4 meter 2 semi. Find out the volume of water in cubic up to depth of 100 semi from the base. क्या करना है, सिर्फ सिंपल वॉल्यूम निकालना है. सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. सो डायरेक्टली we have to transfer the unit into centimeter. 4 meter means 400 centimeter and 2 meter means 200 centimeter. Again it is multiplied by 100 semi. So it means
800,000 semi-cube or 8 meter cube. Next, number 16. A rectangular water tank of dimension 4 meter, 3 meter and 1 meter is filled with water. So एक rectangular tank जो है ये water tank का वॉल्यूम दिया गया है. वाटर फ्रॉम ए टैप से जो वाटर पानी मतलब वाटर टैंक के अंदर गिर रहा है उसका रेट क्या है, पर मिनट में 1.5 लीटर्स पानी अंदर घुस रहा है. सो हाउ मच वाटर इज इन आफ्टर 60 मिनट्स. सो 60 मिनट के बाद वाटर टैंक के अंदर कितना पानी गिरा होगा. अगर 1 मिनट में 1.5 लीटर्स होता है तो 60 मिनट में ज़्यादा होगा. तो ज़्यादा होने पे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई. लुक एट माई कॉपी. तुम चाहो तो वॉल्यूम नहीं में निकाल सकते हो क्योंकि वॉल्यूम के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है, सिर्फ दिया गया है. सो नॉर्मली वाटर फ्लोज इनटू वाटर टैंक 1.5 लीटर्स इन अ मिनट. 1 मिनट में 1.5 लीटर्स पानी अंदर घुस रहा है. सो आफ्टर 60 मिनट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा. सो 1.5 लीटर मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट्स इट मीन्स 90.0 liters means 90 liters. So after 60 minutes, 90 liters is filled in the water tank. Next, number 17. Convert the following into liters and milliliters. सेमी क्यूब से लीटर्स और मिलीलीटर्स में ट्रांसफर करना है. कैसे करना है? So look at it first. सेमी क्यूब से लीटर जाना है, मिलीलीटर बाद में होगा. Just look at my copy. 1825 सेमी क्यूब्स से उसको लीटर में ट्रांसफर करना है. सो नॉर्मली क्या करेंगे, अगर सेमी से लीटर जाना है मतलब सेंटीलीटर्स से अगर लीटर जाएंगे उसका वैल्यू क्या होता है, 1 सेंटीलीटर डिवाइडेड बाय 100. क्योंकि सेमी से लीटर जाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है 100 से. सो अगर वो 1 सेमी क्यूब होता है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100. क्योंकि वॉल्यूम का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसीलिए तीनों 100 से उसको डिवाइड करना है. मतलब 10 लाख से डिवाइड करना है. 1 सेंटीमीटर को अगर हम लोग लीटर में ट्रांसफर करेंगे इट इज डिवाइडेड बाय 10 lakhs. सो 1825 सेमी क्यूब divided by 10 lakhs means 0.001825 liters. सेम वे मिलीलीटर्स में अगर ट्रांसफर करना है तो डायरेक्टली लीटर्स को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे. लीटर से अगर मिलीलीटर जाना है तो 1000 से हम मल्टीप्लाई करना है. सो लीटर को मल्टीप्लाई 1000 we will get the milliliters. Same way already I have done the last one. 20,876 semi cube. So 20,876 semi cube divided by 10 lakhs. So we will get 0.020876 liters. Same way, when we transfer into a milliliter, we have to multiply it by 1000. Then we will get milliliters. So student, hope all of you understood whatever discussed in this long video, because this chapter is quite tough. So please practice it at home. So for today, after this portion, the next class, I will start with mental math.